Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Haina Mazhar, and this is the third presentation of this series of talks on basic dermoscopy, and I'll be discussing the basic terminology here. In order to learn how to perform dermoscopy, you should first learn the terminology. Okay, right. Dermoscopy has its own language, and in order to learn any language, you should first learn to know the alphabets. So we'll first learn the alphabets of dermoscopy. The traditional pattern analysis was very difficult to grasp by the novice dermoscopists and had so many metaphoric terminologies, and it was then revised to modified pattern analysis in 2016. The elements of dermoscopy were then divided into lines, pseudopods, circles, clots, and dots. The lines were further subdivided into different types. Dr. Kittler in 2016 pointed out that the complexities of metaphoric terminology that has evolved for dermoscopy have made the topic very difficult for the beginners to grasp. Dr. Amanda Oakley further simplified the elements of dermoscopy into colored lines, dots, and clots. The elements are grouped together to form the patterns of lines, patterns of dots, and patterns of clots. The structureless zones were the areas with no lines, dots, or clots. So whatever you will see under the dermatoscope should be either a structure or the structureless zones. These structures are formed by the patterns of lines, dots, or clots. While if there are no lines, dots, or clots, these zones are regarded as structureless zones. Again, they can be of varying colors, and the structures which form neat patterns are benign, while the structures which form disordered or chaotic pattern are the cancers. Let's learn the Malin module. It's important to imagine the skin as a three-dimensional structure while performing dermoscopy. The third dimension, or depth, can be assessed by observing the color of pigment on dermoscopy. The dermoscopic color detection of myelin depends on its location and concentration in different layers of the skin. The color ranges from black to brown in epidermis, while gray to blue in the dermis. If the melanin is in stratum corneum or just below the stratum corneum, it will appear black, but it will appear dark brown to light brown if it's in the lower epidermis or at dermoepidermal junction. In the papillary dermis, it will appear gray, while in the deeper layers of the dermis, it will appear blue. White shades show regression, while red shades show increased vascularization or bleeding. Keratin, fibrosis, or hyperplasia of epidermal layers appear white, while sebum or extravasated serum will appear yellow. The dermal granulomas or dense lymphocytic infiltrates will appear orangish, while the hemoglobin within the vessels or hemorrhage will appear red. Okay, let's learn the dermoscopic alphabets. The first and the most important dermoscopic alphabet is line. These lines can be of different types, different shapes, right? अच्छा यहाँ पे आई वुड सजेस्ट यू टू फॉरगेट अबाउट द डायग्नोसिस. इसके बाद मैं आपको जितनी भी जो डेमोस्कोपिक टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी, आपने इसमें डायग्नोसिस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टर्मिनोलॉजी. अगर आप डायग्नोसिस के बारे में सोचना शुरू हो गए तो यू विल जस्ट गेट कन्फ्यूज. Just concentrate on the terminology, lines, dots, and clots. So first dermoscopic alphabet is the line. These lines can be reticular, which is the network of intersecting lines. If you see closely, this forms a honeycomb-like pattern. So let's see how these lines are formed. अब यहाँ पे ये जो reticular network की dark areas हैं, वहाँ पे नीचे ये dark areas they are formed by the rete ridges. और होता क्या है कि जब आप डेमोस्कोपी करते हैं या जब आप डेमोस्कोप से देखते हैं तो sides of the rete ridges, here on the sides of the rete ridges, the dermoscope sees a column of pigmented cells. ये pigmented cells हैं सारे के सारे. तो एक concentration में pigmented cells नज़र आया आपको, जिसकी वजह से आपको dark lines नज़र आती हैं, right? लेकिन dermal papillary area में, dermal papilla वाले area में pigmented cells are very thinned out. इसीलिए यहाँ पे they appear as holes. So normal melanocytic network consists of intersecting lines which correspond to the rete ridges, while the holes which correspond to the dermal papilla. अभी second morphological type जो lines की है वो branched है. These lines can be branched. अब just like the branches of a tree. अब इसमें कलर आपको कौन सा नज़र आ रहा है? This is red in color.
एंड हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था, रेड कलर किस में नज़र आता है, रेड कलर शोज द वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स. Okay, these lines can be curved. If you see closely, these are the curved lines, right? Curved lines, thick curved lines. और कलर कौन सा है इसका, लाइट ब्राउन. लाइट ब्राउन कलर कहाँ पे होता है, इट्स मोस्ट लाइकली द लोअर लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस. अब ये भी लाइन्स हैं. लाइन्स कैसे अरेंज हैं, दे आर अरेंज इन अ रेडियल और स्टारबस पैटर्न. सेंटर में आपको थोड़ा सा रेड कलर पैटर्न नजर आ रहा है और साइडों पे इट्स द रेडियल अरेंजमेंट और द स्टारबस पैटर्न. ठीक है. कलर कौन सा है, कलर इज डार्क ब्राउन, और डार्क ब्राउन कलर शोज मेलानिन इन विच लेयर, द अपर लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस. Okay, right. Again, these starbus pattern can be generalized starbus pattern or localized starbus pattern. Then pseudopods. Pseudopods क्या होते हैं, अगेन लाइन्स हैं और लाइन्स के आगे छोटे छोटे डॉट्स हैं. ठीक है, तो ये दो डिफरेंट पैटर्न्स मिलकर pseudopod बनाते हैं. Pseudopods क्या होती हैं, pseudopods are the radial lines with a peripheral clod, just like a lollipop, या जिस तरह matchstick appearance होती है, या lollipop की appearance, या रैकेट की appearance होती है, उस तरह की. अगर आप और से देखें तो एक लाइन है, उसके एंड पे एक क्लॉड है, लाइन है एंड उसके एंड पे क्लॉड है. तो दिस इज pseudopod. अच्छा, पाम्स और सोल्स, इन पे आपको लाइंस पैरेलल नज़र आएंगी. पैरेलल पैटर्न अगेन दे कैन बी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेलल पैटर्न. अगर फरोज के अंदर नज़र आ रहा है तो दिस इज़ पैरेलल फरो पैटर्न. अगर रिज के ऊपर नज़र आ रहा है तो दिस इज़ पैरेलल रिज पैटर्न. ठीक है. अगर आपको ये ब्रिक वॉल की तरह से नज़र आ रहा है कि फरोज में लाइंस हैं और लाइंस आपस में जुड़ी हुई हैं ब्रिक वॉल की तरह, तो उसको लेटिस पैटर्न कहते हैं. और ये फिबुलर पैटर्न, इसमें आपको डायगनल, थिन डायगनल लाइंस नज़र आएंगी. अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये तीनों की तीनों पैटर्न्स ये सारे के सारे बिनाइन कंसिडर किए जाते हैं. द ओनली पैटर्न of the melanin distribution on the palms and soles which is considered malignant is the parallel ridge pattern. Even parallel ridge pattern जो है ये आपको कुछ benign congenital nevi के अंदर भी नज़र आ सकता है, लेकिन बाकी तीनों पैटर्न्स जनरल दे आर कंसिडर्ड benign. दिस इज पैरेलल फरो पैटर्न. आप ये देखें फरोज के अंदर है, रिजेस पेयर्ड है उसमें. अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत डॉट्स 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 नज़र आ रहे हैं बारीक बारीक सराउंडिंग स्किन पर. ये डॉट्स क्या हैं, दीज डॉट्स आर द ओपनिंग्स ऑफ द स्वेट डक्ट्स. स्वेट ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं उसकी जो ओपनिंग्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, विच शोज दैट दिस इज एक्चुअली द ग्लैब्रस स्किन. अगेन दिस इज द पैरेलल रिज पैटर्न. अब यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत एक्रोसेरेंजियम, बहुत डॉट्स 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 आपको सारी की सारी स्वेट डक्ट्स की ओपनिंग नज़र आ रही है. तो ये पैरेलल रिज पैटर्न है. अगेन फॉरगेट अबाउट द डायग्नोसिस, बस ये देखेंगे पैटर्न कौन सा है. दिस इज पैरेलल रिज पैटर्न विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पैरेलल फरो पैटर्न. ओके, लुक एट दिस लीजन. अगेन आपको लाइंस नज़र आ रही हैं और लाइंस पैरेलल लाइंस हैं. साइड पे आपको देखने में नज़र आ रहा है कि दिस इज द ग्लैब्रस स्किन. और पैरेलल लाइंस किस तरह की हैं कि आपको पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं उसमें फरो पैटर्न में, और ये सारी पैरेलल लाइंस को आपस में ये छोटी छोटी परपेंडिकुलर लाइंस ने ज्वाइन किया हुआ है, आपस में लाया हुआ है. तो इट्स मेकिंग अ ब्रिक वॉल लाइक अपीयरेंस. तो ये लैटिस पैटर्न है, पैरेलल लैटिस पैटर्न, विच आई टोल्ड यू इज अ बिनाइन फीचर. अच्छा, अगर आप इस पे कलर पे गौर करें तो कलर क्या है इसका, इट्स डार्क ब्राउन. अगेन डार्क ब्राउन शोज मेलानिन इन विच लेयर, अपर लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस. अच्छा, ये भी लाइंस हैं. पहले जो ओरिजिनल जो डॉक्टर किटलर की जो ओरिजिनल मॉडिफाइड पैटर्न एनालिसिस था उसमें उन्होंने सर्कल्स को अलग क्लासीफाई किया हुआ था, लेकिन डॉक्टर अमांडा ओकले ने जब इसको रीक्लासीफाई किया तो उन्होंने कहा कि सर्कल्स भी एक लाइन ही है. लाइन एक फॉर्म में अरेंज होकर एक सर्कल बना देते हैं. तो दीज आर सर्कल्स. ये सर्कल्स वाइट कलर के सर्कल्स नज़र आ रहे हैं. वाइट कलर मैंने क्या कहा था किसका हो सकता है, फाइब्रोसिस है या केराटिन है, राइट. अच्छा, ये भी लाइंस नज़र आ रही हैं आपको. ये क्या चीज़ है, ये वाली लाइंस, दीज आर द एंगुलेटेड लाइंस. डार्क कलर की नज़र आ रही हैं, ब्राउन कलर की नज़र आ रही हैं. तो ब्राउन कलर शोज मेलानिन. और कहाँ पड़ा हुआ है मेलानिन, एपिडर्मिस में पड़ा हुआ है. By the way, these angulated lines, they show sun damage. You can see these angulated lines in any area of sun damage, right? Okay, lines can also appear as white streaks. यहाँ पे आपको white streaks नज़र आ रही हैं. इधर मैम में यहाँ भी साइड भी लाइंस हैं. ये रेड लाइंस शो vascular structures, right? और वाइट स्ट्रीक्स, वाइट कलर मैंने क्या बताया था क्या शो करता है, फाइब्रोसिस शो करेगा, या केराटिन शो करेगा, या कोलेजन डिस्ट्रप्शन शो करेगा.
अगेन यहाँ पे भी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं सेंटर के अंदर, ठीक है, वाइट कलर की. Okay, shiny white streaks. These shiny white streaks are also called crystalline structures or chrysalis structures. अब ये नॉन पोलराइज dermoscopy इस पर इतनी क्लियर नज़र नहीं आती, while these lines are more visible, more clearly visible under the polarized dermoscopy. These white streaks are oriented either parallel to each other or perpendicular to each other, right? And these structures correlate histopathologically with the altered collagen. अब होता क्या है कि जो ये altered collagen होता है, इसकी birefringent property, it causes a rapid randomization of the polarized light. This is the reason that this collagen appears bright, white and more conspicuous under the polarized light and not under the non-polarized light. अगर आप toggle करें between the polarized and non-polarized, then you will be able to see these structures more clearly. So this is polarized and then non-polarized. Again polarized and non-polarized, right? The next type of lines is the negative pigment network or the inverse network. अगर आप इसको यहाँ गौर से इसको क्लोजली देखें तो आपको वही रेटिकुलर नेटवर्क नज़र आ रहा है, लेकिन ये लाइट कलर का है, वाइट कलर का, राइट? और बीच में आपको होल्स की जगह थोड़े से डार्क कलर के ट्यूबुलर शेप से ग्लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं, क्लॉट्स नज़र आ रहे हैं. अब ये बनता कैसे? बेसिकली होता ये है कि जो आपके ट्यूमर मास है ये पड़ा होता है पेप्लिडर्मिस के अंदर, और इस पेप्लिडर्मिस को एक्सपैंड कर देता है. व्हेन दिस पेप्लिडर्मिस गेट्स एक्सपैंडेड तो रिटी रिजेस दे गेट थिन्ड आउट, और थिनिंग आउट होने की वजह से ये रिटी रिजेस आपको वाइट कलर की या लाइट कलर की नज़र आना शुरू हो जाती हैं. बाय द वे दिस फीचर इज़ वेरी हाईली स्पेसिफिक फॉर मेलानोमा एंड स्पेसिफिसिटी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 95%. द नेक्स्ट इज सूडो नेटवर्क. अब सूडो नेटवर्क क्या होता है? इसमें द मेलानोसाइटिक नेटवर्क ऑफ द फेस इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ सूडो नेटवर्क वेयर देयर इज डिफ्यूज पिगमेंटेशन along with intervening non-pigmented follicular or small adnexal openings. अब इसमें एक्चुअली देयर इज डिफ्यूज पिगमेंटेशन, और जब दरम्यान में आपकी ये लाइट कलर की फॉलिकुलर ओपनिंग्स या एडनेक्सल ओपनिंग्स नज़र आती हैं तो ये एक ओवरऑल एक नेटवर्क की तरह का पैटर्न शो करती हैं. बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ नेटवर्क, दिस इज नॉट अ रेटिकुलर नेटवर्क, दिस इज एक्चुअली द सूडो नेटवर्क विच इज़ कॉमनली सीन ऑन द फेस. द नेक्स्ट dermoscopic alphabet is dots. So if these dots are black in color or brown in color, they represent the melanocytic nests. और again जैसे मैंने आपको बताया था कि color इसका determine करता है concentration of the pigment and depth of the pigment. अब यही dots जब 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको globules कहा जाता है. Again, if you look closely here, these are the small dots. These dots can be regular or these can be irregular. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे regular dots हैं और यहाँ पे irregular dots हैं, different color और different size के और different color के dots हैं. Our next dermoscopic alphabet is clots. What is clot? मतलब क्या है clot का? What is the literal meaning of clot? Clots are actually the lump of earth or clay. ऐसे नज़र आता है ना clot, solid structures of varying size and shape. They are larger than dots and have a discrete or defined shape or any shape, but they should be solid, right? अब यही clots आपको different colors के नज़र आते हैं. यहाँ पे आपको white color के clots नज़र आ रहे हैं, और मेटाफोरिक टर्मिनोलॉजी में इन white color के clots को myelelexis कहा जाता है. अब क्या बताया था मैंने आपको? white color क्या शो करता है? white color shows the keratin or fibrosis. Again यहाँ पे this white color is because of the keratin, because of the whorls of keratin below the stratum corneum. Again these are clots, these all are clots. और जो इस तरह के clots नज़र आते हैं, red color क्या शो कर रहा है? Again red color shows the vascular structures or blood. और इस तरह के clots को lacunes या lacunae कहा जाता है. Again these are the clots. और इस तरह के appearance को cobblestone appearance कहा जाता है मेटाफोरिक टर्मिनोलॉजी में. Again these are clots in cobblestone arrangement. Again these all are clots or the aggregates of globules. And what's the color? Color is brown, and brown shows melanin. And where is that melanin? It's in the epidermis, right?
So till now we learned about the various structures. 3 types of structures: lines, dots and clots. And if you can't see any line, any dot or any clot, it's called structureless zone. This is black structureless zone which shows melanin where? In the upper epidermis. Again, these are brownish structureless zones. Again, brown color shows melanin in the epidermis or low down in the epidermis. This again is a structureless zone which is red in color. Red color shows blood or hemorrhage or blood vessel. And again, this is white colored structureless zone. This is structureless zone. Brownish, that means melanin in the epidermis. This is homogeneous pigmentation. These structureless zones can be regular or they can be irregular. Look at this one. This is a regular blotch, and on the periphery you can see a network. But this picture shows irregular blotches. Again, a regular blotch in the center and a reticular network on the sides. Again, structureless zone, but it is irregularly arranged. And we can also see some pigmented network here. Again, homogeneous pigmentation, structureless zone, which is bluish black in color. Again, structureless zone, which appears as white scar-like depigmentation. And we can also see some reticular network on the sides. Okay, it's blue-white veil. Blue-white veil क्या होती है? It's the confluent blue pigmentation with an overlying white ground glass haze. अभी blue-white veil बनती कैसे? It is because of the orthokeratosis. White color मैंने आपको बताया था जो आपको या फाइब्रिन की वजह से या केराटिन की वजह से या डिसरप्टेड कोलेजन की वजह से नज़र आएगा. अब यहाँ पे वाइट कलर आपको नज़र आता है केराटिन की वजह से, ऑर्थोकेराटोसिस की वजह से नज़र आता है. होता क्या है कि जब आपके डीप मेलानिन पड़ा हुआ है और उसके ऊपर ऑर्थोकेराटोसिस है, तो मेलानिन का ब्लूइश कलर और ऑर्थोकेराटोसिस का वाइटिश कलर, वाइटिश हेज आपको ऐसे नज़र आता है जिस तरह एक ब्लू कलर के ऊपर आपको वाइट फॉग या वाइट हेज नज़र आ रही है. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो नॉन पोलराइज्ड डर्मोस्कोपी हमें एपिडर्मिस ज़्यादा अच्छी नज़र आती है और ऑर्थोकेराटोसिस तो होता ही एपिडर्मिस में. तो दिस ब्लू वाइट वेल इज़ मोर प्रोमिनेंटली विजिबल इन नॉन पोलराइज्ड डर्मोस्कोपी एज कम्पेयर टू पोलराइज्ड डर्मोस्कोपी. तो ब्लू वाइट वेल आपको नॉन पोलराइज में ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू पोलराइज डर्मोस्कोपी. अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी नज़र आ रहा है ब्लू वाइट वेल के अलावा. ये क्या चीज़ है? इफ़ यू लुक क्लोजली, दिस इज़ वाइटिश एरिया, वाइटिश. दिस लुक्स लाइक lines, reticular network, but this is white. This is light in color. So this is negative pigment network. Again, you can see negative pigment network here. So blue white veil with negative pigment network. Okay, right. You can see a combination of patterns. If you look closely in the center, कौन सा pattern है यहाँ पे? It's reticular pattern. और sides पे आपको क्या नज़र आ रहे हैं? Clots नज़र आ रहे हैं. अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न. रेटिकुलर पैटर्न आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, साइड पे आपको क्लॉट्स नज़र आ रहे हैं. सो बिनाइन नेवाई कैन अपेयर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स, बट दीज पैटर्न शुड बी सिमेट्रिक, राइट. यहाँ पे आप देखें रेटिकुलर नेटवर्क नज़र आ रहा है, क्वाइट सिमेट्रिक. अगेन रेटिकुलर नेटवर्क और मल्टी कंपोनेंट है ये, लेकिन एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में. अगेन रेटिकुलर नेटवर्क है, सेंटर में स्ट्रक्चरलेस एरिया. अगेन लाइन्स हैं, रेटिकुलर नेटवर्क है, सेंटर में स्ट्रक्चरलेस एरिया. यहाँ पे फिर 3 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चरलेस एरियाज नज़र आ रहे हैं. सेंटर में लाइंस हैं, रेटिकुलर नेटवर्क है, साइड पे ग्लोब्यूल्स हैं. अगेन सेम यहाँ पे रेडियल लाइंस हैं, अगेन सिमेट्रिक. सेंटर में ग्लोब्यूल्स, साइड पे रेटिकुलर नेटवर्क है, अगेन ग्लोब्यूल्स हैं. अच्छा, इन दोनों पैटर्न्स में आप देखें दे आर वेरियस पैटर्न्स बट दे आर अरेंज सिमेट्रिकली. इज दिस सिमेट्रिकल? यस, दिस इज सिमेट्रिकल. हाउ इज दिस सिमेट्रिकल? अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करें, एक लाइन ड्रॉ करें, तो दीज 2 एरियाज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. इसका मतलब है कि दिस इज सिमेट्रिकल. अगेन इसको भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें सेंटर में, तो दीज 2 एरियाज जो साइड पे दे विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ओके, लुक एट दिस लीजन. यहाँ पे क्या, सेंटर में आपको ग्लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं, कॉबलस्टोन अपीयरेंस में अरेंज्ड हैं, ठीक है, क्लॉट्स नज़र आ रहे हैं. साइड पे आपको एक स्ट्रक्चरलेस एरिया नज़र आ रहा है, राइट.
और उसके बाहर आपको लाइंस इन रेटिकुलर नेटवर्क पैटर्न नज़र आ रही हैं. तो इसमें तीन डिफरेंट एरियाज हैं, बट दे आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली. तो द स्ट्रक्चर्स विच फॉर्म नीट पैटर्न्स, नो मैटर हाउ मेनी पैटर्न्स देयर आर, बट इफ दे आर फॉर्मिंग नीट पैटर्न्स दे आर बिनाइन. एंड यहाँ पे आप देखें स्ट्रक्चरलेस एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे डॉट्स एंड ग्लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको रेटिकुलर नेटवर्क नज़र आ रहा है जिसमें कुछ थिक एरियाज हैं, थिक होल्स हैं, कहीं पे थिन होल्स हैं, कहीं पे थिक लाइंस हैं, कहीं पे थिन लाइंस हैं, इरेगुलर होल्स हैं. तो स्ट्रक्चर्स विच फॉर्म डिसऑर्डर और क्योटिक पैटर्न दे आर कैंसर्स. ओके राइट, वैस्कुलर पैटर्न्स. वैस्कुलर पैटर्न्स में भी अगेन हमें डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स नज़र आते हैं, और उसमें भी जो मेन आपके अल्फ़ाबेट्स हैं दे आर सेम, दे आर डॉट्स, क्लॉट्स एंड लाइंस. आपको पहले मैंने लाइंस, डॉट्स एंड क्लॉट्स पढ़ाते हुए वैस्कुलर पैटर्न्स इसलिए नहीं बताया दैट यू कुड हैव गॉट कन्फ्यूज्ड. तो वैस्कुलर पैटर्न्स मैंने ज़रा अलग से इसमें बताएं. सो वेसल्स दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सबसे पहले हैं डॉटेड वेसल्स. डॉटेड वेसल्स क्या होती हैं? स्मॉल होती हैं, राउंड होती हैं, राउंड डायमीटर वेसल्स होती हैं, रिजेंबलिंग द पिन हेड. अगर आप यहाँ पे गौर करें तो डॉट 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 में आपको दिस इज व्हाट इज दिस? This is a well demarcated scaly plaque with erythematous space. So this is psoriasis. और यहाँ पे आपको देखें डॉट्स में आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं. अगेन क्लॉट्स की तरह भी वेसल्स आपको नज़र आ सकती हैं. इसको क्या कहते हैं? लिक्यून्स कहते हैं या लिक्यूने कहते हैं, राइट. वेसल्स कैन बी कॉमा शेप्ड. यहाँ पे आपको कॉमा शेप्ड वेसल्स नज़र आ रही हैं. अगेन कॉमा शेप्ड वेसल्स. यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत कॉमा शेप्ड वेसल्स नज़र आ रही हैं. और यहाँ पे सेम इसी लीजन की पिक्चर है, लेकिन डर्मोस्कोप के ऊपर ज़रा प्रेशर दिया है. दिस इज कॉन्टैक्ट डर्मोस्कोपी. तो उससे ब्लांच हो गई हैं सारी वेसल्स. सो कॉमा शेप वेसल्स आर द कर्व वेसल्स विद वन एंड थिकर एज कंपेयर टू द अदर एंड, राइट. देन द हेयरपिन वेसल्स. हेयरपिन वेसल्स क्या होती हैं? दीज आर द लूप वेसल्स विद अ यू शेप्ड अपीयरेंस. यहाँ पे देखें आपको यू शेप्ड अपीयरेंस में लूप वेसल्स नजर आ रही है. जैसे हेयर पिन जो बालों पे लगाने वाली पिन होती है उस तरह की वेसल्स है. लूप शेप्ड आपको वेसल्स नजर आ रही हैं. अगेन अगर आप नीचे वाली पिक्चर में भी गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी लूप शेप यहाँ पे देखें वेसल्स नजर आ रही हैं. अगेन हेयर पिन वेसल्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, यहाँ पे हेयर पिन वेसल्स नजर आ रही हैं. क्राउन वेसल्स एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है, एक बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्किन लीजन का, विच आई विल टेल यू लेटर. तो ये क्राउन वेसल्स हैं जो कि क्राउन की तरह की, जैसे क्राउन की शेप में आपको नज़र आती हैं. दीज आर द क्राउन वेसल्स. इस लीजन के अगर आप साइड पे देखें तो यहाँ पे क्राउन वेसल्स. अगेन क्राउन की तरह की, क्राउन की अपीयरेंस में साइड से इसने इसको इस लीजन के ऊपर ही वेसल्स आई हुई हैं. अच्छा, ये क्या चीज़ है जो वाइट कलर के आपको एरियाज नज़र आ रहे हैं इन बिटवीन द क्राउन वेसल्स? दीज आर क्लॉट्स, राइट. ओके, आर्बोराइजिंग वेसल्स. अच्छा, बहुत सारे लोग जो आर्बोराइजिंग वेसल्स को सिंपल ब्रांच्ड वेसल्स से कंफ्यूज कर देते हैं. अब आर्बोराइजिंग वेसल्स अगेन दे आर क्वाइट स्पेसिफिक फीचर ऑफ a specific type of skin lesion which I'll tell you later. अभी आप उसके बारे में ना सोचें. तो अब आर्बोराइजिंग वेसल्स बिल्कुल ऐसी वेसल होती हैं जिस तरह एक ट्री की ब्रांचेस होती हैं. अब इसमें ट्री की ब्रांचेस में जिस तरह एक जो ट्रंक होती है इट्स बिट थिकर एज कम्पेयर टू द पेरिफेरल ब्रांचेस. एक थिक ट्रंक से या ज़्यादा फोकस्ड ट्रंक से एक स्मॉल वेसल्स और उससे मज़ीद स्मॉलर वेसल्स निकल रही होती हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड आर्बोराइजिंग टेलजेक्टेसिया या आर्बोराइजिंग वेसल्स, राइट. ओके, देन ग्लोमेरुलर वेसल. जिस तरह ग्लोमेरुलाई होते हैं, रीनल ग्लोमेरुलाई, उस तरह की बिल्कुल जो है एक गुच्छा बना होता है वेसल्स का. तो दीज अगेन आर क्वाइट स्पेसिफिक फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ स्किन लीजन. ये देखिए, ये ग्लोमेरुलर वेसल्स नज़र आ रही हैं आपको. देन द कॉर्कस्क्रू शेप्ड वेसल्स. ये भी आपको बहुत कम नज़र आती हैं और अक्सर आपको वहाँ नज़र आती हैं. यहाँ पे आपको पोलीमॉर्फस वेसल्स नज़र आती हैं. लीनियर वेसल्स होती हैं जो स्पाइरली या हेलिकली अरेंज्ड होती हैं. पोलीमॉर्फस वेसल्स. अब इस फोटो में आपको बहुत सारी डिफरेंट वेसल्स नज़र आ रही हैं. डिफरेंट मॉर्फोलॉजी की वेसल्स नज़र आ रही हैं. इसमें आपको कॉइल वेसल्स भी नज़र आएंगी, आपको कर्व वेसल्स भी नज़र आएंगी, कॉमा शेप वेसल्स भी नज़र आएंगी, डॉट्स भी आपको बीच में नज़र आ रहे हैं. आपको लीनियर वेसल्स, लेकिन छोटी सी लाइन है, ये भी नज़र आ रही है. तो पोलीमॉर्फस वेसल्स यूजुअली आपको मेलिग्नेंसी शो करती है, यूजुअली आपको मेलिग्नेंट कंडीशंस में नज़र आती है.
Okay, right, take a break. Okay, next presentation is very important. I'll discuss the algorithms and approach to diagnosis on dermoscopy, right? I'll tell you different approaches and algorithm, and I'll tell you which one is my favorite. So see you in the next tutorial. Bye-bye.